Hi, good evening, all of you, and welcome to today's session. Today, we are talking about GS Mains Paper 1. And people who have enrolled, I would request आपको इस सेशन का स्लाइड भी मिलेगा, इस सेशन के असाइनमेंट भी मिलेंगे. But still, while the session is happening, I would request you to keep your pen and paper up और थोड़ी थोड़ी नोट्स आप बनाइए बिकॉज दिस इज अबाउट मोर ऑन द एनालिसिस ऑफ पेपर वन के वो पर्टिकुलर sections that is on the history, art and culture, world history. And today we are going to go on the trends on which the questions are coming, or with the amount of time we have, what are the various topic areas जिसके ऊपर आपको uh, you need to be ready with your uh, notes. Why notes? I'm sure all of you would have read this that कि मेंस का सबसे कॉमन वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इज टू हैव ऑल योर 100 वर्ड्स नोट्स फॉर ईच टॉपिक. जो भी आपका सिलेबस टॉपिक है उसका एक 100 वर्ड्स नोट आपके पास होना चाहिए. सो इन दैट रिगार्ड्स, इफ यू आर टुडे रेडी, तो 100 वर्ड नोट्स बना के आज का जो सेशन है उसका 100 वर्ड्स नोट आपको 2 दिन के अंदर बना के रखना है आपके पास in a blank paper. So that is how you will be able to close your syllabus as with the progress of timeline जो हमने आपको इस प्रोग्राम में दे रखा है. As I requested previously that what we need is uh, अच्छा एक बार बता दो, आर वी लाइव? कैन एनीवन कंफर्म in YouTube comment whether am I audible, visible? I think refresh. If you are not able to see, just refresh the YouTube, kill the page again and refresh the link. So Sanket, you can see. Fine. So coming to the topic for this GS mains paper one, you know that we have around 75 days remaining. Or up, uh, those who have enrolled, उनका personalized calendar we will be discussing in this week's session. आपको हमारे तरफ से what is the exact way of uh, 3 hours per day? What are we looking at for 3 hours per day? And उस हिसाब से आपका क्या सिलेबस प्रिपरेशन होना चाहिए. वेर इन GS1 का जो भी हमने शेड्यूल कैलेंडर बना रखा है, आपके लर्निंग सेशंस एवरी सैटरडे होंगे. सो टुडे वी विल डू द सेशन एंड आई वुड आल्सो लाइक टू वेलकम Dr. Alok, as he is my student, you're aware, and he's been supporting me in this initiative. Hi, Dr. Alok. Hi. Thanks for your time. So, Alok would be taking forward today's session on paper one. Why Dr. Alok would be discussing this in detail today is because uh, he's someone who has been, like till recently, he has been evaluating also the exam, and he has been evaluating the patterns and many things, nitty gritty of the changing pattern of the exam. So while I'll come in between and tell about this, but my whole intention is आप लिखना शुरू करें और अपने आंसर्स इवैल्यूएशन के लिए देना शुरू करें. And even for the all the audience who are watching us today now, or maybe later when you watch it, you have the link. आप अपना असाइनमेंट इस फोल्डर से डाउनलोड करें जो आज भी दिया जाएगा, और मॉक पेपर वन को आप लिख के हमें भेजें फॉर फ्री इवैल्यूएशन, एंड लेट अस शेड्यूल द इवैल्यूएशन एंड हेल्प अंडरस्टैंड वेदर हाउ व्हाट इज योर करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन. मत सोचिए कि मैं एक बार बहुत तरीके से प्रिपेयर करके लिखूंगा, वो वक्त नहीं आने वाला है. आज जितना आता है उससे लिखना शुरू कीजिए और धीरे धीरे आप एनरिच करेंगे. सो दैट्स द अप्रोच, और टॉपर्स अप्रोच जैसे बोला जाता है. सो विद दैट, डॉक्टर आलोक, लेट्स स्टार्ट द सेशन. Okay.
Okay. So let me start the session and please let me know if I am not audible or the visuals are not visible to you. So this is the session one, which will be presented by Abhilash sir and me, Dr. Alok. So now, as you can see this slide, a piece of advice is being given that every piece that you have lost 79 kgs and beer is eating that person. So what do we understand by this? That every advice which you are being fed with, it should be taken in a context. The giver is giving it in a context, and you have to also take it in a context. So the right now the most important context which we are having that now means is only 70-75 days away. So you have to take all the advices very seriously and think upon yourself that what is suiting you the best. So this will be the outline of today's webinar. I'll be discussing purpose of exam, instructions, then syllabus, directive words. We will also do PYQ analysis, advanced tips on answer writing if time permits. So I have taken this slide directly from UPSC prospectus so that there is no confusion in your mind that from where these all things are coming. So please mind that these are all information which UPSC is giving you. So we have to, this is the most important part of the preparation. So let's see what is all there in the this thing. The mains examination is intended to, that means the purpose of examination is to check overall intellectual traits. So, and depth of understanding. So this is the most important word, that it is checking the depth of your understanding. Till prelims, it was checking the breadth of your understanding. So whatever you read from nowadays, even if you are reading 10 topics out of 20, it should be in depth rather than going superficially all the 20 topics. So this is my advice to you right now, then rather than merely a range of their information or memory. So this exam is, mains exam is not checking your information or memory. It is checking your analytical abilities, how you are going to process those informations. When you will, after this cracking this exam, you will be posted in field. So even if you are having that information, how you are going to utilize it in the field, that is being tested in this exam. And then the next line is to test a candidate general awareness on variety of subjects which will have a relevance for career in civil services. So mind it that whatever it is there, if it is not having relevance for a career in civil services, they will not be asking it. So be sure whatever is being asked in the exam, it is having some relevance to civil services. Then it is checking your ability to analyze and take view on conflicting socio-economic goals, objectives, and demands. So many students I have seen that they think that okay, I will not take any stand, or we have to take a balanced approach or something like that. But this exam is intending to check the ability of your ability to take a view on conflicting socio-economic goals. So whether we should go towards capitalism or socialism, whatever it is there, you have to take a view on that. You have to give your opinion. Ki what do you want? Which should be supported by evidences. It should not be superficially. So next, these are the basic instructions, the basic hygiene factors which I say to my students that these you should be following in your answer copies minimally, and these are being given by UPSC itself. So candidates should note that if any irrelevant matter, signages or marks which should not be, which is not related to the question or answer, and which is disclosing your identity, should not be written, else penalty of deduction of marks will be there. Next is the handwriting should be legible. I'm not saying that handwriting should be very good, but it should be legible. It should be soothing for the eyes of the examiner. And if you are not writing legibly, most of your information will go unnoticed to the examiner's mind and you will lose out marks. So start practicing to write legibly from now onwards. And trust me,
In next 2 months you can develop this habit of writing legibly. During our course of interaction, I will tell you more finer tips and details that how to improve your legibility. I had this because I am a doctor, and doctors are very notorious that their handwriting is not legible. So I suffered from this problem, and by searching Google and everywhere, I improved a lot in my legibility part. So I'll tell you what all to do in that part. Then marks will not be allotted for mere superficial knowledge. This means this trick is there for those questions in which you just know the superficial things and you want to fill the pages by just superficial knowledge. I am requesting you, please don't do that. You will not be given marks. The UPSC has clearly said in its instructions, in its prospectus, that we will not allot you marks for superficial knowledge. So write only the depth of knowledge, else give that time to any other question. The credit will be given for orderly, effective, and exact expression. So this orderly term is very important here. That means that whatever, if they are asking you give reasons for something, and you are writing 5 reasons, those reasons should be written in an orderly fashion. That means the most important reason should be at point number one, then point number two. And I will also teach you how to find out these order, how to prioritize your points, and then go about writing those bullet points. Then the next thing is due economy of words. You have to be very means like economical in uses of words. You have to write in very small sentences in all exam. Then you have to use SI units. Like by this I mean that when you are writing weight of something, it should be in kg, not in pounds or something else. So SI unit you have to read about it. There are 7 standard SI units. You have to use them wherever you are using those units. Like for if electricity consumption in India, something like that, you have to use SI units. Then use only international form of numerals. So, coming to the syllabus of today's discussion, today we are going to discuss the general studies part, the history section, and it carries almost 75 to 85 marks out of the 250 marks. That means one third of the syllabus is there for history part, and this is the most static portion of the whole syllabus. So you have to be very thorough in this, and students are right. This is since this is a competitive exams, many people are very much prepared about this, and your question answers are being judged in comparison to other person's answer. So you have to write very good answers in this portion. So, syllabus. This is Indian culture, then modern Indian history, freedom struggle, post-independence, and history of world. And UPSC has given details about this also, that what they are asking. And the main key to this syllabus is the PYQs, that in which from which areas they are asking questions in previous years. So we will discuss that in brief. So let's start with the basics of answer writing. What is the basic? That any question 10 marker or 15 marker, you have to start with an introduction, then a body will be there, and then conclusion will be there. So what to write in introduction? Introduction is something that will tell the examiner that you have understood the demand of the question. So you have to write in a way that that line will show that you have fully understood that what the examiner is asking in the question. And you have to write some value added intro. Intro should be something adding some value to your answer. It should not be the just the copy paste of the question which is given over there, and it should be conveying an idea, data, or fact which is as per the demand of the question. Many a times, students write on any topic and they write some random um, data or fact which is not related to that particular question. I will show you in due course of time, and during your evaluation also, I will pinpoint what areas the your intro is not fitting into the demand of the question, and it should be kept very short. It should flow logically from the question. And the litmus test for your introduction is by reading the intro, one should be able to guess the question. Like once you have written the intro, today you do one exercise, go to back to your intros of whatever full length test or half length test you have given. Just read the intro first and then try to guess that
is, and then try to see for yourself, are you able to guess the question properly? This is the litmus test for intro. And once you start gaining adequate practice in this habit, it will start coming naturally from you. Then body, it is the very basic thing that you have to write under subheadings and use keywords directly from the question for write making the subheadings. That is the very important thing. Write in bullet points because due economy of words should be there. So please don't write in a paragraph form. It is now very much established fact that by bullet points you are able to write more number of points and in less time. So please don't go in paragraph form unless and otherwise you are running short of something. Then 10 marker, you have to make two subheadings. For 15 markers, you have to make three subheadings. By this, because 15 markers will have three pages, so one page you will devote to one subheading. And by this way, you will uh, properly be able to finish up your paper and make maps wherever possible. In conclusion, like in history conclusion, it can be connected to the next phase or to the present day also. I'll tell you later. And then the best conclusion will also has the same litmus test. By reading the conclusion, one should be able to guess the question near about that what was being asked in the question. And conclusion should also be as per the demand of the question. So all three things, intro, body, and conclusion, these three are not separate. These are a connected whole, and everything is having separate marks, and you should be learning how to write these things. So let's discuss the details of Indian culture. I have taken one example that this question was asked in 2013. Chola architecture represents a high watermark in the evolution of temple architecture. Discuss. So, just by reading this question, the first thing comes in my student's mind is that this question is about writing Chola architecture. So, what you do that once this thing came in your mind that this is about Chola architecture, your intro will be time period of Chola Empire. Then you will write a body that great living Chola temples, Panchayatan style, Gopura, whatever information you are having, you will just jot them down, and then you will make a diagram of Dravida style of temples. And then you will conclude by saying that hence it was the highest watermark. And just see that the question was Chola architecture represents a high watermark in the evolution of temple architecture. So now let me rephrase the question for you. So this intro, body, and conclusion, don't you think that this is for the same question if they would have asked, what are the features of Chola architecture? But this is not the question. The question is something else. Let me rephrase the question for you. How can you आलोक say, or आलोक आलोक थोड़ी बहुत ऑडियंस से मैसेज आ रहा है कि आप जो डिस्कस करें थोड़ी सी हिंदी में भी बीच में यूज करिए वाइल द मीडियम इज इंग्लिश थोड़ी सी ब्रेक डाउन करिए ऑन द हिंदी बिकॉज मोस्टली एक फ्लो में इंग्लिश okay, को fine, no कन्वर्जेशन issues. टाइप कर हाँ Okay, fine, fine. So what I have discussed till now that yeah, I have taken one question of 2013 year. Chola architecture represents a high watermark. तो ये क्वेश्चन में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको जब स्टूडेंट सबसे पहली बार देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन है चोला आर्किटेक्चर के बारे में और उसके हिसाब से वो इंट्रो लिखते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ चोला लिख देंगे बॉडी लिख देंगे चोला आर्किटेक्चर के बारे में सारा कुछ और लास्टली लिख देंगे कि यस इट वाज द हाईएस्ट वाटरमार्क बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें ये है कि अगर यही क्वेश्चन आपसे केवल ये पूछा जाता कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ चोला आर्किटेक्चर तो आप सेम यही लिखते व्हाट इज द डिफरेंस उसने जो इतनी लंबी चौड़ी अंग्रेजी लिखी है और इतना समझाया है वो किस लिए है अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ क्वेश्चन को हाउ कैन यू से और डू यू अग्री दैट चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटरमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर नाउ यू हैव टू प्रूव that it was the highest watermark in the evolution of temple structure. Now, see, I want to highlight here that the question is more about the evolution part of architecture. During that evolution, the Chola architecture was the highest watermark. You have to show this thing.
If you are able to show this thing in your answer, you will get the true highest marks which can be got in this question. Else you will get an very average marks because you have just discussed the Chola architecture. And poor marks will be taken by those students who are writing very superficially in this question. So this is the usual thing. So in this question, what a good intro should be, a line on evolution of temple architecture. Like you can say that temple architecture has evolved from rock cut to wood bricks, then uh, big, small to large, then huge gateways were improving and they were becoming more gigantic. And then you have to tell that along with all the justifications that it was the pinnacle. Like you can say that Brihadeshwar temple has 80 tons granite shikhara, which is not found locally. It is unimaginable how such things came to that top of that temple. So these are the architectural marvel of that thing, that period. Then you will be concluding by saying that such advanced architectural style is missing in next 3 4 centuries, and after in Vijayanagar times we can see them again. So by this you are able to complete the answer fully and you will get good marks if you are writing in this theme. So similarly, the you have to understand for all the questions like discuss the Tandav dance, Sangam literature. So I have highlighted all the important topics which they are asking. But around the topic, you have to read the whole question, understand what is being asked about it, and then write about that. I will show you one figure. See, this figure tells you about how perspective matters. Now you can see that giraffe is seeing that lady from the top, and the giraffe is able to see the hat of the lady, and it has drawn the hat, and now you can see the lady. So it depends like in what ways the UPSC has asked. If it is asking you to draw the picture of this lady of the hat, then you have to take the upper preview from the sides, whatever it is there. And for that, UPSC don't says you like take from sides. UPSC आपको कुछ keywords देती है. वो keywords क्या होते हैं? Analyze, critically analyze, critically evaluate, comment upon, discuss. और ये सारे डायरेक्ट वर्ड्स के कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं. जैसे कि कुछ डिस्कस करते हैं, जैसे एनालाइज अगर बोलता है तो उसमें आपको उस इशू का सब कुछ डिस्कस करना, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन. अगर कमेंट ऑन बोलता है आपको तो उसमें आपको जस्ट मेन इश्यूज और प्रॉब्लम जो है उसके बारे में आपको बताना है. उसी तरीके से अगर डिस्क्राइब बोल रहा है किसी इशू के बारे में तो आपको उसके मेन फीचर्स बताने हैं, मेन इवेंट्स, मेन फीचर्स, बस. उसके दूसरे एस्पेक्ट्स, एनालिटिकल एस्पेक्ट्स, क्यों आया, कहाँ से आ रहा है, वो सब उतने डिटेल्स में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. पासिंग रेफरेंस पे आप एक लाइन जस्ट लिख सकते हो. Similarly, if it is asking you justify, then you have to show adequate grounds with examples to support your position. People just say without example, many students write the only grounds and they lose out marks. You have to give support all your bullet points with your examples. Then if they are asking how far do you agree, what I have seen that students do that, वो लिख देंगे अग्री के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, डिसएग्री के कुछ पॉइंट्स लिख देंगे और फिर आंसर कंक्लूड कर देंगे. बट जब ये आपसे पूछ रहा है कि हाउ फार डू यू एग्री, तो आपको अपना वर्डिक्ट देना है कि यस आई अग्री, और आई अग्री टू अप टू एन एक्सटेंट, आई डिसएग्री अप टू एन एक्सटेंट. और कोई भी चीज दुनिया में एब्सोल्यूट नहीं होती है, तो आपको हमेशा मतलब कि अप टू एन एक्सटेंट करके ही बात करनी है. जब भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट जब आता है तो आपको डिफरेंस टेबल फॉर्मेट यूज करना है. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस के जो कीवर्ड्स होते हैं उसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, तो आपको वो फॉर्मेट्स को प्रॉपर फॉलो करना है. जब इलिस्ट्रेट या इलेबोरेट ऐसी टर्म्स आती हैं तो आपको उसमें ढेर सारे एग्जांपल्स देने हैं, मतलब कि 10 15 एग्जांपल्स आपके आंसर में दिखने चाहिए. सो ये बात हुई डायरेक्टिव वर्ड्स के बारे में. देन और भी टॉपिक्स मैंने आइडेंटिफाई किए जैसे मेसोलिथिक कल्चर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहे हैं कि एंशियंट सिविलाइजेशन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. विजयनगर किंगडम, किंग और कृष्णदेव राय,
बुद्धिस्ट स्तूप आर्ट, गुप्ता न्यूमिस्मेटिक्स, भक्ति कल्चर एंड कभी-कभी ये लोग कुछ लोगों के नाम दे देते हैं, चैतन्य महाप्रभु का बारे में पूछा, तो 2-4 जो प्रोमिनेंट हैं उनके बारे में हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। एक मेरे पास एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। I'll just quickly run through these things. This is the 2023 question. So like इसमें जैसे बोल रहा है explain the role of geographical factors towards development of ancient India. तो अभी एंशियंट इंडिया के बारे में नहीं लिखना है, इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का रोल लिखना है। तो द आंसर विल बी हैविंग मोर और टर्म्स रिलेटेड टू द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, और उसको आपको कनेक्ट करना है कि कैसे वो एंशियंट इंडिया में डेवलप करने में हेल्प किया। So this is an activity I have made for you. You have to write 100 words about each topic in a A4 sheet, and you will show it to me when you come for evaluation next time. So these are the important topics which I have segregated from the previous year's question only. You have to write 100 words about each topic, and these 100 words should be like most important. A and the ये सब नहीं होना है। मेन जो कीवर्ड्स हैं वो लिखने हैं। 100 कीवर्ड्स अबाउट ईच टॉपिक। Alok, यहाँ पे I would सो like to come in between before. यस सर। Can you go back to the assignment? यस। सो जो एनरोल्ड स्टूडेंट, आपको तो ये करना ही है, और जो बच्चे अभी इंटरेस्टेड है, मेंस लिखने वाले हैं, आप एनरोल करें या ना करें, इट्स डिफरेंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज इस तैयारी के लिए, इस प्रिपरेशन के लिए, द आर्ट ऑफ राइटिंग विल कम ओनली व्हेन यू राइट. We are very concerned that it is like around 75 days remaining. Will you be able to even write 75 papers? 75 paper on a single A4 sheet. क्या आप में वो पावर है? बिकॉज इट्स नॉट टाइम टू बी लेजी. अभी अगर इसमें आता है मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर, इस टॉपिक पे आपको लिखना है, तो जो भी आप 100 वर्ड्स लिखेंगे ना, आई प्रॉमिस यू वही आपको रिकॉल होगा एग्जाम प्रेशर सिनेरियो में भी. अगर आज आज आपको तकलीफ हो रही है उस 100 वर्ड्स को करेक्ट करने में, तब परसों जब वो एग्जाम में आएगा तब आपको वो तकलीफ नहीं होगी. आप इमीडिएटली एक 150 मार्क्स का क्वेश्चन आप अपने 100 वर्ड से आप उसको लिख सकते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझ के. व्हाट हैपेंस इज कि अगर जितना डिले में आप ये एक्सरसाइज करेंगे 100 वर्ड्स वाला, उतना आपको परेशानी होगा कि व्हेन विल आई रीड एंड रिवाइज इट, कब मैं उसको रिवाइज करूंगा और कब मैं उसको फिर जब वो आंसर में आएगा मुझे याद भी आएगा कि नहीं आएगा. बिकॉज पाइल अप होने वाला है धीरे धीरे. करंट अफेयर जैसे ही अभी करंट अफेयर का समंदर जुलाई 15 आपका डैफ आपने सबमिट कर दिया, और सडनली आप द हिंदू खोलेंगे तो चारों तरफ खाली करंट अफेयर के एड्स आ रहे होंगे, करंट अफेयर कोर्स. आपका माइंड जाएगा कि मैं करंट अफेयर ही कर लेता हूँ, और आप खाली वही करंट अफेयर को भरोसे ही पूरे एग्जाम देने की कोशिश करेंगे. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट डिफरेंस हैपेंस बिटवीन पीपल हु मेक इट इनटू द लिस्ट एंड पीपल हु ऑलवेज गो फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. ये बड़ा साइक्लिक है, और हर बार लगता है मैं कर लूंगा टाइप्स. तो आपको ये लिखना है तो लिखना है. अगर आप सोचो आप सेंटेंस नहीं बना रहे हो, 100 वर्ड्स मतलब आप चलो 4 पॉइंट जो आपको याद आ रहे पॉइंट, गूगल यूज कर लो, चैट जीपीटी यूज कर लो, जो यूज करना है यूज कर लो, अपने पुराने नोट्स यूज कर लो, पर वहां पे लिख लो कीवर्ड्स. ये 5 वर्ड्स तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, इसके एग्जाम्पल्स ये हैं, इसके एग्जाम्पल्स ऐसे हैं. दैट्स एग्जैक्टली इज द अप्रोच यू शुड हैव, एंड राइट अवे फ्रॉम टुडे. इनफैक्ट जब ये सेशन हम 8 o'clock क्लोज करेंगे, माई रिक्वेस्ट वुड बी आप इमीडिएटली ये चीज करो और अपने पास रख दो. आज बिफोर द एंड ऑफ द डे यू कंप्लीट दिस 100 वर्ड्स, स्पेशली इन दिस टॉपिक के लिए. I used to say in my times that it is not about preparing 100% of syllabus. It is preparing 70% of the syllabus, but completely 100%. 70% आपको सिलेबस चूज करने हैं टॉपिक्स, और लेकिन उसको 100% प्रिपेयर करना है. वो 100% में ये है कि आप उसके 100 वर्ड्स लिखेंगे, आप उसके सारे एग्जाम्पल्स के हिसाब से या डायग्राम के हिसाब से भी उसको लिखेंगे, मैप के हिसाब से उसको लिखेंगे, और बनाएंगे उसको चीज को. कितना टाइम लगता है आपको बनाने में, एंड दैट इज व्हाट यू विल क्रिएट योर स्किल सेट फॉर राइटिंग द मेंस आंसर. नाउ यू कैन टेक फॉरवर्ड. ओके। एंड इसमें एक चीज और ऐड करनी है कि आप ये 100 वर्ड्स अगर आपको लिखने में अगर तकलीफ अगर अभी हो रही है, ढूंढना पड़ रहा है, तो आई कैन हेल्प यू आउट बाय गिविंग एन एडवाइस। चैट जीपीटी खोलिए, जो जो टर्म्स मैंने लिखे हैं आप वो टर्म को उस पे टाइप कीजिए, वो एक लंबा चौड़ा उसके बारे में लिख के देगा। उसमें जो जो कीवर्ड्स आ रहे हैं एटलीस्ट आप वो 15-20 कीवर्ड्स आज ही लिख डालो। ये एक्सरसाइज हम लोग जो हर हफ्ते अभी ये करेंगे वेबिनार्स,
हर हफ्ते आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज देंगे हम लोग, और अगर आप उसको प्रॉपरली अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन आगे बढ़ेगा। एक लिटमस टेस्ट बताता हूँ। 16 को प्रीलिम्स ओवर हुआ, आज 6 तारीख हो गया। जस्ट सी फॉर योरसेल्फ हाउ मच यू हैव रिटन। और एग्जाम में ये जितनी भी आप पढ़ाई कर लो, अगर आप उसको नहीं लिख पा रहे हो, अगर नहीं लिखोगे, कुछ भी काम नहीं आने वाला। और ट्रस्ट मी, आप जो भी घटिया भी आंसर लिख रहे हो, अभी आप बहुत बेकार आंसर लिखोगे, आई नो, बट आप वो भी बेकार आंसर को आप चेक करो। ट्रस्ट मी, आई विल बियर अप विथ यू। घबराना नहीं, आई विल नॉट जज यू कि ये गंदा आंसर लिखा है, बट पहले गंदे आंसर्स लिखोगे तभी अच्छे आंसर उससे बाहर निकल आ पाएंगे। और हर टॉपिक के बारे में लिखो। सो मूविंग अहेड, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये सारे सिलेबस है। अब जैसे कि इसमें लॉर्ड डलहौजी है, तो इस तरीके से ये कोई कोई एक वाइस रॉयज के बारे में ये पूछता है हर साल। अभी इसमें ट्रिक क्या है कि आपको वाइस रॉयज के बारे में आपको याद तो है ही है, उसके आगे इंट्रो कंक्लूजन क्या लिखना है, एक बार अगर आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो बहुत आसानी से आप सबका लिख सकते हो। और हो सकता है कि कोई नया वाइस रॉय इस बार पूछ ले, बट आप अपनी पुरानी नॉलेज से भी उन क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, अब बशर्ते कि अगर आपकी प्रैक्टिस है ये सब लिखने की। फॉरेनर्स के बारे में, इंडियन वुमेन, विमेन के बारे में इन फ्रीडम स्ट्रगल बहुत पूछते हैं ये लोग। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ये मस्ट है, इसको तो आज ही आप लिख लो। इसको पूरे 75 दिन रिवाइज करो, ये क्वेश्चन का ये जरूर कहीं ना कहीं काम आएगा। कुछ नहीं तो ऐसे में तो डेफिनेटली एक, जब आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में ये एक लाइन लिखने का जरूर काम आता है ये टॉपिक। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज हमेशा नोट कीजिएगा, मैं स्टूडेंट्स को कॉपी में लिख देखता हूँ, गांधी गांधी करके लिख देते हैं। एटलीस्ट शो सम रिस्पेक्ट टू दिस मैन, एंड गांधी शुड बी ऑलवेज बी रिटन एज गांधी जी। तो भैया कुछ चीजें हैं जो बेसिक हाइजीन फैक्टर्स हैं, आपको हमेशा फॉलो करने हैं। गांधी को बिना जी के प्लीज मत लिखिएगा अपने आंसर में। न्यू ऑब्जेक्टिव्स विच गॉट एडेड, अभी ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू ऑब्जेक्टिव्स दैट गॉट एडेड to the vision of Indian independence since 20s of the last century. So, एक बार में लग रहा है कि न्यू ऑब्जेक्टिव्स, अगर ये बोलता कि इन्यूमरेट द न्यू ऑब्जेक्टिव्स, तो आप टक 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 बुलेट पॉइंट्स लिख देते, ये 8-10 न्यू ऑब्जेक्टिव्स ऐड हुए थे। बट ये क्वेश्चन पूछ रहा है हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू ऑब्जेक्टिव्स। तो अब इसमें आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है कि वो न्यू ऑब्जेक्टिव्स ऐड हुए तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो जो भी आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे उसको एक लाइन उसको एक्सप्लेन करना और उसमें उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करनी है। जैसे कि अगर आप उसमें लिखते हो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगर आ रही है तो हम लोग का सेकुलर इंडिया बना उससे जाके। ट्रेड यूनियंस अगर डेवलप हुए, न्यू ऑब्जेक्टिव्स विच गॉट एडेड, तो वर्कर्स राइट्स आए हमारे डीपीएसपी में। विमेन रेजिमेंट्स बने, रानी झांसी रेजिमेंट बना, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला, एवरीबॉडी गॉट द वोटिंग राइट्स आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस। तो ये इंपॉर्टेंस थी वो न्यू ऑब्जेक्टिव जो ऐड हो रहे थे उनकी। तो आपको इस तरीके से जस्टिफाई करना होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स ऐड हुए और क्या न्यू, मींस लाइक व्हाट वेर द इंपॉर्टेंस ऑफ दोस थिंग्स ड्यूरिंग द स्ट्रगल एंड आफ्टर दैट ऑल्सो। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, ये और भी चीजें, कॉम्प्लिकेटिंग ट्रांसफर ऑफ पावर, मैनी वॉइसेस। सेम क्वेश्चन है, देखिए दूसरे तरीके से पूछा है, इस बार पूछ रहा है मैनी वॉइसेस हैड स्ट्रेंथेंड एंड एनरिच्ड द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। गांधीयन फेज यू नो लाइक आफ्टर 1915, यानी कि 1920s के डिकेड्स के बाद वो मैनी वॉइसेस पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है, और यही फायदा होता है आपको पीवाईक्यू बनाने का। अगर आपने वो क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, इस क्वेश्चन को इसके लैंग्वेज के हिसाब से बहुत इजीली आप बना सकते हो और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसा अभी सर ने बोला कि यू हैव टू प्रिपेयर द 70% ऑफ द सिलेबस 100% करना है उसको। ये देखो, सिंस द डिकेड ऑफ 1920s द नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स एंड देयरबाय एक्सपेंडेड इट्स सोशल बेस। डिस्कस। तो इसमें भी वही सारे स्ट्रैंड्स आएंगे, आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स। इसको आपको सब में ये प्रूव करना है कि देयर बाय एक्सपेंडेड इट सोशल बेस, कैसे इसका बेस बढ़ गया। तो जस्ट थोड़ा शब्दों का हेर फेर है, लेकिन अच्छे से प्रेजेंट करने की बात है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी पहले पूछा, अभी लॉर्ड कर्जन पूछ रहा है। तो आप देखोगे कि एक सेट पैटर्न है यूपीएससी का पूछने का, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपकी प्रिपरेशन भी आसान हो जाएगी, और इन चीजों को आपको 100% प्रिपेयर करके रखना है।
और फिर थोड़ी बहुत और लैटरल स्टडीज करनी है ताकि जो न्यू क्वेश्चंस आए उनको आप हैंडल कर पाए। तो इस बार बहुत दिनों बाद महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा। ट्राइबल्स पे पूछ रहे हैं, अभी ट्राइबल्स पे बहुत फोकस है, तो मैं ये बोलूंगा कि ट्राइबल्स की चीजें, चाहे हिस्ट्री हो, सोसाइटी हो, हर जगह थोड़ा सा इसको स्पेशली प्रिपेयर करना है ट्राइबल्स के बारे में, ये आपके पूरे जीएस में काम आएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे एक्सरसाइजेज में। हम लोग ऐसे ऐसे ही टॉपिक्स दिया करेंगे जिसमें कि आपको जो मोस्ट कॉमन चीजें जो आज के डेट में बातें चल रही है उसके अराउंड ही आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अगेन दिस इज द एक्टिविटी ऑफ 100 वर्ड्स। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? नहीं नहीं आलोक, आई थिंक दिस एक्टिविटी रिमेन्स द सेम, कि आप चैट जीपीटी यूज करिए या जो भी करिए, बट आज इसको कंप्लीट करिए। वी शुड हैव द सेंस ऑफ टाइम, एंड उस हिसाब से अगर आप साथ साथ करते रहेंगे तो ये हर सेशन में सिलेबस चेंज हो जाएगा, टॉपिक चेंज हो जाएगा। आप बाद में करेंगे, अगर आज ऐसा सोचेंगे तो इट इज गोइंग टू बी, वी आर ओनली आस्किंग फॉर 3 hours पर डे, एंड दिस इज ऑल इन द 3 hours you have to do. प्लीज प्लीज कंटिन्यू। एग्जैक्टली exactly. और आज नहीं तो कल ये करना ही करना। मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, कितना भी आप अपने सोर्स से पढ़ो, जब तक आपके ए4 शीट पे नहीं लिखा होगा वो आंसर में आएगा नहीं। आप आज बनाओ इसको, और जैसे इतना सेग्रीगेट करके दे दिया है तो एटलीस्ट मैं जितने टॉपिक्स आज आपको बता रहा हूँ उनके आप आज के आज लिख लीजिए। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी वैसे ही है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको उनके 100 कीवर्ड्स बना लेने हैं। देन वर्ल्ड हिस्ट्री का भी वैसे ही करना है। उसके बाद ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का ही है। सारे जो जो मेन मेन कीवर्ड्स हैं उसके एरिया के अराउंड आप अपने नोट्स बना लीजिए। फिर जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे यू विल बी एबल टू हैंडल देम। दिस इज द एक्टिविटी you have to do. You can take a snapshot or you will get the handout. You can download it from the link given. So, प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर बाय ट्रेंड्स। देखिए भविष्यवाणी तो कोई कर नहीं सकता है, बट एक ट्रेंड देख के कुछ सोचते हैं कि क्या होता है। तो एक आर्ट एंड कल्चर और आइए इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसका एक थोड़ा सा ट्रेंड रहा है कि एक साल किन्हीं से पूछते हैं और अगले साल दूसरे वाले से ज्यादा पूछते हैं। बट कभी कभी ये ट्रेंड इन लोगों ने ब्रेक किया, जैसे 15 16 17 तीनों बार में इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट से ज्यादा पूछा। फिर उसका आर्ट एंड कल्चर, देन इंडियन नेशनल मूवमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, आर्ट एंड कल्चर, और फिर पिछले साल फिर से वही ट्रेंड को ब्रेक किया और आर्ट एंड कल्चर से ही ज्यादा पूछा। तो इस बार एज पर द ट्रेंड आर्ट एंड कल्चर से पूछना था, बट आईएनएम, सो यू हैव टू नाउ प्रिपेयर दीज बोथ टॉपिक्स वेरी इक्वली। मतलब कि मेरा ये मानना है कि आपको दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पहली बार पूछा था, उसके बाद से बीच में कभी नहीं पूछा, एंड देन अगेन उसका रिसर्जेंस हुआ है पिछले 1-2 सालों में। और इस बार आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस भी एक प्रिपेयर करना होगा और एक वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना होगा। तो पहले आर्ट एंड कल्चर और इंडियन नेशनल मूवमेंट को प्रिपेयर कर लेंगे, एंड देन इफ टाइम परमिट्स देन ओनली प्रिपेयर फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंड इन लास्ट प्रायोरिटी प्रिपेयर फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। So this is the activity which I want you to do. You please write down 5 learnings from today's session and send it to your mentor. And in every webinar, we will write down five learnings which are for you, the key important areas which you have taken. I have given a lot of messages, but for many of the students, some messages will be a repeat kind of thing. So whatever was new for you or whatever important you found today, just jot it down, send it to your mentor. It will help tracking your progress during the whole course of time till the mains. Thank you. Thank you, Alok, for the session, and for especially going through the previous year question और उसका ट्रेंड देख के कीवर्ड समझना। बट मुझे पता है कि आप जो प्रिपेयर सीरियसली कर रहे हैं ये सब आपने अपने ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कर रखा होगा, या फिर आपने अपनी तैयारी में, या फिर आपने यूट्यूब के वीडियोस में आपने कर ही रखा होगा, देख रखा होगा। बट हम जो ये एलिवेट प्रोग्राम कर रहे हैं, हम राइटिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, और इट इज मोर अबाउट राइटिंग। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि wherever you feel, you have to write it and share it to us. थोड़ी सी उस पे आप जोर दें, बिकॉज नाउ हो गया आपका डैफ। आई एम श्योर आप अपना डैफ कंप्लीट कर चुके होंगे, कल सबमिट कर देंगे, कर दिए होंगे या करेंगे।
आपको डैप का भी कोई इश्यू है तो हमने एक वीडियो बनाया है, आप पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं। और कुछ कंसर्न आप पूछ लीजिए, लेकिन गेट इट क्लोज्ड एंड देन मूव ऑन, लेट्स नॉट स्टिक टू वन थिंग। और राइट करके आप भेजिए जो एक्टिविटी है। माय एक्सपेक्टेशन इज कि एग्जाम देने के लिए डर नहीं होना चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए। और उस एंथुजियाज्म में गलत या सही लिख के तो दो। लेट अस अंडरस्टैंड आपका ब्रेन क्या कैपेबिलिटी डाल रहा है। अभी जो ट्रेंड्स एनालिसिस हमने बताया है, उसका एक तरीका भी समझने का ये है कि ये कौन सा साल चल रहा है, उस साल में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। क्या 100 ईयर्स हो रहा है? जब आपने देखा होगा, जब ट्रेंड 16 17 19 में देखा, इंडियन नेशनल मूवमेंट और ये सारी बात हुई, तो इनफैक्ट 1916 1917 1918 इंडियन नेशनल मूवमेंट के की मूवमेंट ईयर थे, सबके 100 ईयर्स हो रहे थे। इट वॉज इन न्यूज, इट वॉज बीइंग डिस्कस्ड। 100 साल पहले क्या हुआ था इस देश में, किस चीज का हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं, किस चीज का 100 ईयर्स मना रहे हैं। ये सारी चीजें, स्टैम्प रिलीज, आपको पता होगा, ये सारे अपडेट आप लेते होंगे करंट अफेयर्स में। तो दिस बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल। सिमिलर टू 2024 है। अब 1924 में क्या क्या एक्टिविटीज हुए थे आप देख लीजिए, 1954 में क्या क्या एक्टिविटीज हुए थे देख लीजिए। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, जो थोड़ी सी न्यूज में भी अलग तरीके से आइटम आता है, पर्सपेक्टिव आता है, तो दैट बिकम्स रेलेवेंट और आपके सिलेबस से मिल जाता है। You will get a separate note of it when we discuss on the current affair and other part of it, उसका हम अलग करेंगे। But as for today's session, because ये history का session था, and I wanted, and it's open for all also, I wanted everybody to understand that ये जो चीज है ना, ये हम आपके लिए, you can invest your 20 hours to do this, or you directly start running the race। हमने वो आपका जो 20 आवर्स बचा लिया है, आप उसको 30 मिनट्स में क्लोज करके आप एक्शन पे उतर सकते हैं। तो यू सेव योर 20 आवर्स ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील, पुराना चीजें देख के और करने का। अब डायरेक्टली यू कम टू दी मुद्दे पे आ जाओ कि सर ये टॉपिक है, ये डिमांड में मैंने ये लिखा है, ये मैं, आपने मुझे बोला कि सर पॉइंट में लिखना है, लेकिन यहाँ पे तो लिख नहीं रहा, पॉइंट पे लिख सकता हूँ। हिस्ट्री तो ऐसे टाइप का लिखा जाता है, मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ। जो भी आप करना चाहते हैं आप लिख के आप बताओ विद दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन, so that the mentor here, I would also seek help from Alok, because what has happened is I've seen personally that Alok is quite updated on the kind of environment aspirants today live in। आप डिजिटल एनवायरनमेंट में प्रिपेयर कर रहे हो, क्या आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपके आंसर्स में वो दिखता है। मैंने कई आंसर शीट आलोक के साथ भी डिस्कस किए हैं वाइल माई इवेल्युएशन एंड अंडरस्टैंडिंग। मैं भी अपना फीडबैक लेता रहता हूँ, अब मैं आपसे भी लूंगा। सो वेयर आई हैव कम टू नो दैट कि वाई somebody is writing this, ये इस तरीके का लिख क्यों रहा है, क्या क्या ये अच्छा है बुरा है, वो वाली बात नहीं है। बट व्हाट इज ही अंडरस्टूड कि इस क्वेश्चन में क्या समझा होगा। एंड देन वेयर आई अंडरस्टूड दैट आलोक हैज अ वेरी रेलेवेंट इनपुट्स टू गिव। तो माय मेंटरशिप इज देयर थ्रू आउट फॉर एवरीवन। और इवन आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आलोक अवेलेबल होगा कहीं पे भी एंड यू वांट टू सीक सम अदर पर्सपेक्टिव और वे, थोड़ी सी मेरे से भी बोर हो गया कि अंडरस्टैंड एक्चुअली क्या बोलना चाह रहे हैं, ये सर कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। Alok is there, is much nearer to you to, you can, uh, I can connect and you can have your sessions also with him। बट ये बात मुद्दे की है कि बोथ ऑफ अस और एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स हु आर इवन हु सेंड मी ऑल गुड विशेस, वो ये चाहते हैं कि जो जो हमने उनके लिए किया वो आपके लिए भी किया जाए, कि आप अपने बेस्ट को आने के लिए आपको एक्स्ट्रा कदम लगाना पड़ेगा और मैं आपका हाथ खींचूंगा। तो यू जस्ट राइट, एक्टिविटी आज दिया गया है, ये सेशन खत्म हो जाएगा 7 7:15 के आसपास। उसके बाद आप 8 8:30 तक उसको खत्म करो, 9 o'clock तक मुझे व्हाट्सएप करो। इफ यू कैन गो, आई नो सैटरडे है, आई नो बहुत सारी चीजें चल रही है लाइफ में, बहुत सारे अदर प्रायोरिटीज है, बट हमको अब ये 100 दिन भी नहीं रहे, 75 डेज इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर टॉप 1046 में आना है, वन थाउजेंड और फोर्टी सिक्स अभी जो लोग मेंस लिख रहे हैं मतलब उनके लिए खास मतलब कि एक चीज और है कि जैसे मैं देखता हूँ कभी कभी कि आंसर इवैल्यूएशन में अगर लिख के इवैल्यूएट कर दिया, मार्क्स दिए, कुछ भी जो भी है, क्योंकि सब चीजों में सब्जेक्टिविटी होती है, या फिर उसके किसी पॉइंट को कुछ और लिखने के लिए बोला। बहुत बार क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स उसको डिफरेंटली परसीव कर रहे हैं, मतलब कि द थिंग विच आई वांट टू से, और मैंने जिस पॉइंट की वजह से उसको कट किया, उन्हें कुछ और लगा।
तो उसके लिए एक ये कर सकते हैं कि मतलब एक ऑडियो फाइल सा बना दें कि वाइल मींस लाइक रनिंग थ्रू द शीट ऑफ द स्टूडेंट, उसको एक अगर ऑडियो फाइल भी अगर दे दें कि यू कैन गो थ्रू कि व्हाट वाज गोइंग इनसाइड द एग्जामिनर्स माइंड, देन ही कैन जज अपॉन हिमसेल्फ कि उसे क्या करना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली आप करो। मैं तो एक्चुअली व्हाट आई एम थिंकिंग इज, मैं आई काइंड ऑफ कीप अ नोट, एंड जब मैं वन ऑन वन काउंसलिंग कर ही रहा हूँ, मैंने एक्चुअली डिस्कस की, ये समझ में आता है उसकी मनोस्थिति क्या थी, और व्हाट वाज आंसर चेकर्स माइंडसेट, व्हाट वाज हिज और हर एक्सपेक्टेशन। थोड़ी सी वो एक डिस्कशन पॉइंट भी हो जाता है इन द काउंसलिंग सेशन, ऑब्जेक्टिवली ना। हम्म। सो दैट इज व्हाट बट यू शुड डू इट, बिकॉज इट विल हेल्प कि भाई क्या किस पॉइंट पे लाल लाइन लिख दिया है, ऐसे क्यों लिखा, मैंने तो सही सोच के हाँ। लिखा था। यू शुड डू इट, वो हम्म। रिकॉर्ड के लिए भी अच्छा है। सो व्हाइल कमिंग टू दिस हिस्ट्री, हमने 2013 से सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करके दिया है आपके पास, ये स्लाइड्स लिंक में डिस्क्रिप्शन है। और uh, आपको पता है कि वो जो फोल्डर मैंने डाला है वो रेजर पे का फोल्डर है, वहाँ पे बिकॉज यूट्यूब में डाला है, तो अगर कोई वेरीफाइड करेगा तो मुझे लगेगा सीरियस स्टूडेंट है। तो जिनके पास मेरा नंबर है, आप प्लीज़ उसमें पे वे करके कुछ मत करिए, आप सीधा आप मेरे से रीच आउट करिए। और वो फोल्डर का एक्सेस मैंने पहले दे रखा है सब एनरोल्ड स्टूडेंट को, आप उसी में देखिए, वहाँ पर ही फोल्डर मैंने बनाया। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन टू शो यू द फोल्डर, सो दैट अगर आपको डाउट सा है तो भी डाउट ना ही रहे। तो अगर आप जस्ट अ सेकेंड, अभी मैं आई विल स्पीक अबाउट द प्रोग्राम वंस अगेन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स कैंडिडेट हु हैव जस्ट ज्वाइन विद अस, लाइक व्हाट आर वी टॉकिंग, हम किस चीज पे बात कर रहे हैं। तो आई विल जस्ट टेक यू थ्रू द फोल्डर, जस्ट लेट मी नो इफ यू कैन सी माय स्क्रीन। Alok, can you see my screen? Yes, sir, it is visible, but I don't know whether. Okay, it is visible. So ये फोल्डर जो है, इसमें आप देखोगे मैंने दो, हमने एक ऐसे सेशन किया था, उस ऐसे सेशन का भी जो एक्टिविटी है, आपका ऐसे का हैंड आउट सेशन उसमें है, उसमें डिवाइड द टॉपिक वाला एक्टिविटी था। आई होप आपने किया है अभी तक जो ऐसे आए। मैं चाहता हूँ जिन्होंने मुझसे टाइम मांगा था कि सर और थोड़ी सी टाइम लगेगा, प्लीज क्लोज योर एसेस टुडे। जीएस मेंस का सेशन है जिसमें ये पहला सेशन है। ये सेशन वन का आपके पास सेशन का स्लाइड का है जिसमें सारे एक्टिविटीज लिखी हैं जो अभी अभी आपको बताया आलोक ने। और ये है क्वेश्चन पेपर। आई थिंक आलोक, इफ यू कैन share this to the audience. Okay. It is already shared. You can talk about it. Okay, so this is the activity which we want you to do today. Like you have to write these 7 questions in a proper exam mode, write in a within the margins. अगर यूपीएससी वाला कॉपी जो आता है जिसमें margins बने होते हैं, it is fine. If it is not there, just take A4 sheets and fold it from the sides. The margins should be within 16 centimeter, and then start writing. You have to write within the margin, and then write all these 7 questions. Take two pages for 10 markers and 3 pages for 15 markers, and write it within the allotted time period. If you are exceeding the time, just mention the time taken by you in top of the answer sheet that you have taken. Okay, I took, sir, 67 minutes or 70 minutes I took. Just mention it. It helps that to understand and analyze that within this many minutes you were able to produce this quality of answer. यस, ये एक मस्ट है सबको लिखने के लिए। टाइम कितना लेते हैं, मैंने टाइम की पाबंदी, ऑल्दो इसमें 60 मिनट लिखा हुआ है, बट टाइम की ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आपका जो मन है बस वर्ड लिमिट के हिसाब से आप डालिए उसको। मैं तो कहूँगा आप क्रॉस चेक करिए अपने रेफरेंसेस और वगैरह, बट याद से लिखिए, कहीं से नोट लगा के कॉपी मत करिए। हमसे अच्छा वाहवाही लेने का कोई मतलब नहीं अगर मेंस में नहीं वो दिखता है। सो सी दैट यू राइट इट इंडिपेंडेंटली इन काइंड ऑफ एन एग्जाम कंडीशन। वो इन द मीनवाइल आपके इन टॉपिक्स का 100 वर्ड्स पे आपके साथ आज कंप्लीट हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम ऑल द एक्टिविटी व्हिच हैपेंस, व्हिच कम्स इन दिस क्वेश्चन। प्लीज बी ऑन टाइम। ये सबमिट करने का टाइमलाइन आपके पास कल शाम तक है, because you know that every Saturday we are going to have the
session. With this today's history session, I think we can. Shall we conclude the history session? I can talk about the programs coming Yes, forthcoming sir. session. Yes, sir. Because I want to take small sessions for these students. They most of them are writing mains, so I just want to keep it short and crisp. Mostly, main learning will be there when I will have their answer sheet and they will be talking to me face to face with their answer sheet. क्योंकि कितना भी बोल बच्चन ये सब कुछ पूरे सब जगह चल रहा है बट असली काम है जो उसने लिखा और उसकी इम्प्रूवमेंट्स उसे पता होनी चाहिए दैट इज माय मेन एजेंडा बिल्कुल. सो अभी आई थिंक मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ. यस सर सो दिस इज फॉर दी आवर फोर्थ कमिंग सेशंस. तो आज 6 तारीख था, हमने ओपन सेशन किया. हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट मेडिवल इंडियन नेशनल मूवमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की. वी स्पोक अबाउट द PYQs, द ट्रेंड्स, इंट्रो एंड कंक्लूजन, करंट अफेयर एंड डेटा फैक्ट शीट्स, बिकॉज इसका जो है ये करंट अफेयर में डालेंगे जो अपडेटेड है, एंड क्वेश्चन पेपर विद PYQ एंड आंसर्स टू बी सबमिटेड इन 24 आवर्स. तो ये आपको मिल चुका है क्वेश्चन पेपर एंड दिस थिंग. इसके जो करंट अफेयर रेलेवेंट क्वेश्चन है, प्रेडिक्टेबल पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, वो सेशन आपको करंट अफेयर सेशन के साथ भी सारा डिटेल दिया जाएगा. इसके हैंडआउट्स दिए जाएंगे, नोट्स. ओके. नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन 13th July. अगेन इट्स अ सैटरडे, 6 p.m. to 8 p.m. प्लीज आप इसे अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए. एंड दिस इज फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट. Students who want to enroll now are open, enrolled immediately, so that we can send you your calendar of next 75-74 days, and you can track your work and monitor the progress. और काउंसलिंग का कोई मतलब भी निकले नहीं तो ऐसी बात करके अच्छा फील कराने का ओनली इंटेंशन नहीं है. आउटकम है कि आपका नाम, मैंने पहले अगर आपने ऐसे सेशन अटेंड किया होगा, वो मार्कशीट जिसमें रिकमेंडेड लिखा हो, दैट इज द थिंग. तो ये हमारे सेशन के डेट्स हैं. एंड लेट्स बकल अप द सीट एंड गो टॉपिक बाय टॉपिक, बिकॉज दिस टाइम जो है अगला एक महीना बहुत फास्ट जाने वाला है. सो ये है गया दिस थिंग. ऐसे सेशन का जो प्लान है, अगला सेशन 10 जुलाई को है, वेडनेसडे को. एंड अगेन इट इज 6 p.m. to 8 p.m. आप ये दिस इज ऑल्सो ओनली ऑल्सो फॉर एनरोल्ड कैंडिडेट्स ओनली. तो आप अपने ऐसे अगर अभी तक सबमिट नहीं किया, आप सबमिट कर लीजिए. आपका काउंसलिंग सेशन भी बुक हो जाएगा अकॉर्डिंगली फॉर ऐसे. And weekly we will have that, say as we are going to have one counseling session जिसमें आपके दोनों टॉपिक डिस्कस हों. नहीं तो हम दो काउंसलिंग सेशन लेंगे, बट ये है इंटेंशन कि आप जो भी इम्प्रूवमेंट दिखाए वो अगर आप जल्दी से जल्दी उसका काउंसलिंग कराएंगे तो अगले सेशन तक आप रेडी हो पाएंगे. ओके. 10th को है, फिर नेक्स्ट क्लास 17th July को है. अगर कहीं पे कुछ टाइम शेड्यूल का चेंज होता है, यू विल बी अपडेटेड ऑन इट फॉर ऑल द एनरोल्ड कैंडिडेट. आपके अपने जो गूगल फोल्डर्स हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके नाम के, जिसमें आपके सारे इवेलुएटेड शीट्स ऑन रिकॉर्ड और जो भी रिकॉर्डेड फीडबैक्स हैं वो भी आपके पास अवेलेबल होंगे विद ऑल द एक्सेस. आपको कुछ भी एनी कंसर्न विच यू आर हैविंग वेयर इन योर सेल्फ स्टडी अप्रोच, प्लीज बी ओपन टू मी एंड लेट अस डिस्कस दिस आउट कि उसका कोई रास्ता है कि नहीं. अगर इट इज सॉल्वेबल, डूएबल, वी विल डू अबाउट इट. इफ इट इज समथिंग विच इज ओवर पैरानॉइड होके हम नहीं कर पा रहे, तो हम उस पर ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे. वी विल जस्ट कम टू, भाई हमें 70% सिलेबस करना है, 100% करना है, दैट इज द लोगो मोटिवेशन. उसको करके ही जाना है. और आपको ये पता भी है कि जो टॉपर होता है उसका बाहर की टोटल 60% नहीं बाकी होता. तो दैट इज हाउ प्रिपरेशन का जो अप्रोच हमें बनाना है. सो फॉर पीपल हु हैव टेकन ऑप्शनल मेडिकल साइंस या ज्योग्राफी में, आपका ये इसके सेशंस आपको उसके अलग से नोटिफाई किए जाएंगे, and you will get all the papers and activity around it also. So please enroll. Anything you need to know, discuss. You have to book a session with the counselors, like with me. uh, Especially and understand, I want to understand your UPSC journey. अगर आप repeat attempters हैं, especially fifth attempt या last attempt जो कर रहे हैं, I would request them कि आप don't risk yourself trying out multiple things. अपने पे विश्वास है, बहुत अच्छी बात है, वो रखना भी है, बट ट्राई टू डू थिंग्स डिफरेंटली दिस टाइम सो दैट द रिजल्ट्स आर डिफरेंट. तो आप देखिए कि आप अपने आप को उस लिमिटेड टाइम में कैसे बेहतर से और बेहतरीन कैसे बनाएं. सो दैट्स द इंटेंट. एंड विद दैट, I would suggest all the links are in our description.
So we can close our session for the day. Any questions if you have, I'm open for questions. आप मुझे व्हाट्सएप में ऑडियो फाइल करके भी भेज सकते हैं या चैट करके भी भेज सकते हैं, अगर यूट्यूब में भी आप चैट कर सकते हैं, हाउ एवर इट इज. So we'll wait for 1 minute if any questions are coming, or else we will close the session. Alok, you have anything else to say on this? Oh, I have just have to say that please start writing and showing your answers wherever you are to whom whichever person you are showing, and take those feedback seriously and start working upon them. Okay. And you can give the session feedback also to us. Your session feedback link will be also provided to you, which you can fill and share it back to us. हमें भी improve करना है, as it is more about personalized mentoring. While the sessions are to keep track of everyone in one go, मतलब एक तरीके से, बट वी अंडरस्टैंड आप अपना खुद का अप्रोच कर रहे हैं, खुद का अपना प्लान होगा, बट उससे मत भटकिए. लेट अस बी अलाइंड विद दैट ऑल्सो. ठीक है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन यूज द यूट्यूब चैट टू रेस्पॉन्ड. और आपको डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का भी लिंक है, नंबर है, उसमें आप भेज सकते हैं. या तो चैट भेज दीजिए या तो फिर आप अपना ऑडियो को भेज दीजिए, सो दैट आई नो इफ यू हैव एनी कंसर्न. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ऐसा कुछ है नहीं, सो वी विल क्लोज द सेशन फॉर द डे. एंड यू कैन स्टार्ट योर, अपना हैंड आउट्स डाउनलोड कर लीजिए एंड डू द एक्टिविटी. इस जल्दी छोड़ रहे हैं इसलिए ताकि आप अपना 100 वर्ड्स कर कंप्लीट करें, और अपने क्वेश्चंस, जो आज का जो एक्टिविटी क्वेश्चंस है, वो आप 7 क्वेश्चंस आप उसको एटलीस्ट वर्ड वाइज मैनेज करके उसको आप यूपीएससी स्टैंडर्ड से लिख के हमें भेजिए बाय टुमारो नाइट, 7 जुलाई के एंड तक. एंड ऑल ऑफ द क्वेश्चन सबमिटेड विल बी इवेलुएटेड. जो भी है, आप एनरोल हुए हो नहीं हो, आप एनरोल का डिसीजन बाद में लीजिए, बट पहले हमारा इवेल्यूशन लीजिए. एंड लेट्स बी ऑन ट्रैक, स्पेशली फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग दिस years में. All the best, and stay motivated and keep on learning. Chalo, see you guys next week, next weekend. Bye. Thank you. Bye bye.